Yes, ma'am. Good morning, sir. Good morning. Dear participants, so now we have Mr. Mathli Sharan Gupta, sir. He's an IPS officer and he is designated as Special Director General of Police Reforms, Madhya Pradesh since 2014. So, if I talk about his academic qualifications, so sir has total 13 degrees and diplomas, and including BTech, Mechanical Engineering, MTech, Industrial Engineering from IIT Delhi, MBA with specialization in Finance, Marketing, and HRM. And if I talk about his experiences, sir has holded SRP position, Jabalpur SP, Tikamgarh, Mandla, Guna, and Bhopal as DIG, Balaghat Range, Additional Director Police Academy, DIG ITBP, as IG, IGP Operations Kashmir, CRPF, IGP Special Task Force, ADGP Administration Railways, DGP Railways, Home Guard, Civil Defense and Disaster Management, and Police Reforms. Sir has also won several medals and awards, uh, such as so there are 13 medals, commendations, three awards including MP Government E Award. Sir has also taken some special works like GRP Help App and Investigation Support System transforming policing in railway domain, Automated Investigation Support System for Crime Free India, State Disaster Response and Monitoring System for Disaster Resilient MP. And now he has been engaged in several projects like Crime Free Bharat, Disaster Resilient Bharat, Road Accident Resilient Bharat. So there are many projects that he has been holding. So, sir, with this brief introduction, I would like to invite you to address our audiences. Thank you very much, Namtaji, for your Namtaji for such a elaborate introduction, and I would like to take you to the journey of a transformation, because how long we will keep on discussing, and many time our discussions are distorted. They are not very objective. I was just reading leaflet, and it was saying that we have little improved. Now we are having in gender gap and gender discrimination index, we are at the 35 out of 146 country, and we have improved from 140 out of 156. So we fail to really appreciate that we do not have the common base to compare. Whereas in the first, the base is 146 country, and another place the base is 156 country. So whether we have really gained or did not gain, what the projector of the statistics really intend to tell, sometime it is very dubious. It is not having right kind of the sanctity also. I think we should be more concerned about, can we make a difference on ground, because can we change experiences. So I hope everyone is on journey of the transformation, and we would like you to be part of the Crime Free Bharat mission, transforming this nation and taking it to the different level. My friends, it's doable. It's absolutely doable. Uh, Let me little tell you the historical background. We gained freedom in 1947. I don't know whether it is freedom or not, or it was just a transfer of power. Because if you do the objective analysis of the facts, then it was not a azadi, it was not a freedom, it was just a transfer of power from Britishers to a person who was chosen by a Britisher. So he was not really a person chosen by the public at large. And when elections were held, there were lot many distortions which had been brought in, and lot many things they have been done at gross violation of Constitution. Whereas I would like to question whether we have really owned the right kind of the Constitution.
I would like to apprise this August gathering that our Constitution is drawing 80% of its material from Government of India Act 1935. I am very sure you will agree that majority of the people, they will, majority of the provision, they were intended to rule slave Indians. Could we have done a better thing? And at the same time, we did not really bother to do the mid-course correction. Our Constitution provides for the fundamental rights, which says no one shall be discriminated on the basis of the caste, creed और religion. तो हमारे यहाँ पर कोई जाति, धर्म आदि के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा. It is a dictate of Constitution, but that has not been observed. We have done n number of the things in violation of our own Constitution. It is really very demeaning for all of us. It should not have been done at all. If we talk about the Waqf Board, this is in gross violation of the provision of our Constitution, because it somewhere violate that equality, right to equality, and no discrimination on the basis of the caste and creed. We have came out with an n number of provisions which are in absolute contradiction with our Constitution. Now, let's take it to the logical things. Lot many things, they were given as a directive of state policy. So, framer of the Constitution thought, let's give the direction for the future of India. So as and when we will be having the right kind of the means, we would be in position to take India to that side. Many provisions, they have not been at all observed. Like, there is Article 44, which says Uniform Civil Code. My friend, we have just celebrated 75th Independence Day, Azadi Ka Amrit Mahotsav. And we did not have the courage to really say firmly these directives will be implemented. I would like to again draw your attention to Article 47, which says all intoxicating materials, liquor, etc., they go against the common mass, especially poor people, poor and downtrodden. And the liquor should be prevented as a part of constitutional dictate, Article 47. It's very unfortunate that we have not done anything. Rather, liquor has reached in every nook and corner. And wherever the liquor could not reach in the form of an outlet, it has reached illegally in the forms of the packets. And it is very unfortunate that lot many youth, they are, instead of taking regular meal, they are just taking liquor and some namkeen. Now, taking it to a different transformational journey is the need of hour. Let's talk in terms of the certainties. क्या हमें इस देश को सुनिश्चितताओं के माध्यम से एक फर्म फ्यूचर नहीं देना चाहिए? तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि इस क्राइम फ्री भारत, where gender equality is inbuilt, women empowerment is inbuilt, I think let's talk about that. Let's talk about those 5 certainties. They are well within the technical domain to make it happen.
we can always create a right kind of the legal framework which is at present missing. ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हम अभी भी अंग्रेजों के उन नियमों से गवर्न किए जा रहे हैं जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे. इज इट नॉट वेरी अनफॉर्चुनेट? आपकी पुलिस अभी भी 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है. आपकी आईपीसी इज डेटेड बैक 1860. ये सभी कानून अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, शासित करने के लिए बनाए थे. Should we allow ourselves to be ruled by that? Or should we get involved in a devising forces and where we take number of oaths? हम रोज जो है ना कोई जो है प्रतिज्ञा करते हैं, कोई ना कोई ओथ लेते हैं और हमारा कैरेक्टर ग्राउंड में उसको कहीं रिफ्लेक्ट नहीं करता है. वो सभी ओथ जो है सेरेमोनियल हो जाती हैं, हाइपोथेटिकल हो जाती हैं, वो सिर्फ करने के लिए होती हैं. दे आर नॉट रियली meant to be a serious task. क्या हमें अपने भारत का वो बेसिक फाइब्रिक्स पे काम नहीं करना चाहिए क्या? Should we not really improve it so that it can become true republic where each and every, I mean, in not only the gender, let's not talk of the gender alone, but I will talk about the caste, creed, race and religion. And should everybody not live in a environment of equality where people should not be discriminated? We should have that, not only the right kind of the policy, but we should have a institutional framework to make it happen. That institutional framework is missing, and that institutional framework has become less accountable to the public. मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि क्या आप अपने आप को आज़ाद मानते हैं या आप अपने आप को गुलाम मानते हैं? Here I would like to pause to listen some response from you. As on date, today, आप गुलाम हैं या आप आजाद हैं? Should I look for some response from audience? Please feel free, because if it is a monologue, it won't be impressive. If it would be dialogue, probably we might make a journey, transformational journey, because I will come and give you a package whereby it will be changing the ground reality. Do you wish to change ground reality? Then please be in communication. मैं आपसे पुनः अपना क्वेश्चन दोहराता हूँ, क्या आप अपने आप को आज़ाद मानते हैं या अभी भी अपने आप को गुलाम मानते हैं? Yes, please. सर अभी भी हम गुलाम ही हैं, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो हमारी गुलामी के टाइम पे थे वो हमें झेलने भी पड़ते हैं. देख भी रहे हैं डेवलपमेंट एरियाज के अंदर वर्किंग में तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके थ्रू हम नहीं कह सकते कि हम आज आजाद भारत के नागरिक हैं, क्योंकि जब तक ये रिस्ट्रिक्शंस और इस तरह के इश्यूज जो क्राइम रिलेटेड हो रहे हैं और बहुत सारे रूढ़िवादी परंपराओं से बंधे हुए हैं, फिर हम मॉडर्न की ओर तो जा रहे हैं लेकिन उसको भी हम सही वे में नहीं लेकर आ पा रहे हैं. तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बांध रखने में अपना बहुत अहम रोल अदा कर रही हैं. पूर्वी जी, बहुत सुंदर, आपने बड़े ही अच्छे शब्दों में पूरी व्याख्या की है. मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि हम आज भी पूरी तरह से गुलाम हैं
और इसकी हम 3 इंडेक्स पे आपको लेके जाएंगे। पहली इंडेक्स है नियम कानून, दूसरी इंडेक्स है प्रशासनिक एंड जुडिशियल व्यवस्था, तीसरी बात है पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। क्योंकि यदि हम इस इकोसिस्टम को इम्प्रूव करेंगे तो जेंडर इक्वलिटी, क्राइम अगेंस्ट द वुमेन, ये सब इर्रेलेवेंट हो जाएंगे। इक्वलिटी विल बी द फोर्टे, इक्वलिटी विल बी ऑर्डर ऑफ द डे। हमारा समाज में समानता एक अपने आप अवतरित हो जाएगी, और जो सिचुएशन आप ग्राउंड पे देख रहे हैं वो ग्राउंड सिचुएशन बदल जाएगी। प्रॉब्ली वी हैव टू थिंक इट डिफरेंटली। तो मैं 3 उसको फ्रेमवर्क में एनालाइज करूंगा और फिर आई विल टेक इट टू द सॉल्यूशन कि हम 5 सर्टेनिटी के साथ हाउ कैन रियली एम्पावर वुमेन, एम्पावर एवरीबडी एंड मेक ए डिफरेंस। तो पहला फ्रेमवर्क अपन बात कह रहे थे कि जो नियम और कानून अंग्रेजों ने बनाए थे, मैं एक बार फिर से पूछना चाहूँगा, वो अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए, भारत को लूटने के लिए, भारत की समृद्धि को यहाँ से लूट कर ब्रिटेन ले जाने के लिए, भारतीयों को गुलाम, अपमानित और शोषित करने के लिए बनाए थे, या भारतीयों की सेवा करने के लिए और भारतीयों के विकास करने के लिए बनाए थे? प्लीज रिस्पॉन्ड, मजा आएगा यदि बात करेंगे ना। या प्लीज गो अहेड। पूर्वी। अपमानित करने के लिए बनाए थे, हमें अपने अंदर बांध के रखने के लिए बनाए थे। विकास तो कुछ क्षेत्रों में देखा जाए तो हुआ भी है, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं मिले। अगर देखा जाए तो बस ये सारे सोर्सेस थे उनके कि कैसे हमें डोमिनेट किया जा सकता है। बहुत सुंदर पूर्वी जी, आपने फिर से बहुत अच्छी शब्दों में बात को कहा है। इसका मतलब है अंग्रेजों ने जो नियम कानून भारतीय गुलामों को शोषित, अपमानित करने के लिए बनाए थे, और जो भी अच्छी चीज हो जाए वो इंटेंडेड नहीं थी, वो इंसिडेंटल थी, राइट। अब जैसे ग्लोबल रेल बन गई, तो रेल जो है ना, भारत के रॉ मटेरियल को ब्रिटेन ले जाने के लिए बनाया गया था, भारत में डिफेंस मूवमेंट को बनाया था। उससे आपको थोड़ा बहुत फायदा मिल जाए तो इट इज इंसिडेंटल टू इंडियन। तो देखा जाए तो जो भी लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया था effectively, yes, somebody want to say something? Yeah, please. Person who has raised, he want to say something. I am unable to read his name or her name. Please say whatever you want to say. I could see one raised hand. Hello, sir. Your voice is low. Can you be little louder? Hello, sir. Namaskar. Yeah. Hello. सर, मैं दिलुना बारिक बोल रहा हूँ। सर, जैसे कि पूर्वी जी बोले कि मतलब मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ कि हम जो भी वो नियम कानून बनाए थे, हम अभी भी उसको फॉलो कर रहे हैं ना, कोई भी चेंजेस नहीं लाते हैं। ये आप ये कह रहे हो कि बदले नहीं है। पूर्वी जी ये कह रही हैं कि उसका इंटेंशन भारत पे शासन करना था, भारतीयों को गुलाम महसूस कराना था, भारतीयों को अपमानित कराना था, भारतीयों पर शासन करने का था, भारत की संपदा को लूटने का था। अभी आप उसके सेकंड स्टेज पे चले गए कि वो नियम अभी भी है, हम उसी से चल रहे हैं। वी आर कमिंग टू दैट। सो यू हैव रियली हेल्प्ड मी। लेट मी से कि जो नियम कानून बनाए गए थे उनकी नीयत थी कि भारतीयों से को कैसे जो है लूटा जाए, कैसे उनमें हीन भावना रखी जाए, कैसे उन्हें शोषित किया जाए, कैसे उन्हें अपमानित किया जाए, और भारत की संपदा को कैसे लूटा जाए। इस इंटेंशन से बनाया गया पूरा इकोसिस्टम और रूल्स एंड रेगुलेशन और एक्ट एटसेट्रा, क्या ये हमारी अदूरदर्शिता नहीं है कि आज भी उन्हें हमने अपने ऊपर लादा हुआ है? हमने अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है। उस अमृत महोत्सव के समय पर भी हमने ये बात नहीं कही है कि भारतीयों, हमें इस बात का अफसोस है कि अभी भी हमने जो है गुलामों के नियम कानून आप पर थोपे हुए हैं, जिन्हें हम इस वर्ष बदल देंगे। Have you got the answer to your thing? Because both the things are not in contradiction. आपस में उसमें कोई विरोध नहीं है। उन्होंने बात नियम कानून के इंटेंशन की कही थी, आपने उसके दूसरे डायमेंशन की बात कही है
कि वो अभी भी लागू हैं एंड उनको नहीं बदला गया है। तो मैं भी यही कहना चाहता हूं कि नियम और कानून को बदला नहीं गया है, तो नियम और कानून के कारण आज आप भी गुलाम हैं। इज इट मेकिंग सेंस? एवरीबडी इज अलोंग विद दिस ऑब्जर्वेशन कि हमारे, या प्लीज। Anusmita, please, you want to say something? Please go ahead. Yes, sir. Thank you for the talk. It is making sense, sir. It is high time that we realize that these enslaving laws are no longer practicable when the situation in the country requires a change in these laws. And it is high time that the laws change according to the seriousness of the crimes. That is what was my observation, sir. Yeah, Anusmita, you are 200% correct. Let me tell you, I am 100% in agreement with you. And then I will raise a little question whether our so-called politicians, they are really having the same kind of the perception, whether they would be enacting those laws because we have chosen few peoples and we made them the legislator, and it is their responsibility to change laws. Are they the right kind of the people to make it, or they are the different kind of the people, or we have to take a different pathways to make it happen? So we will deliberate on that. I mean, but your observation is 200% correct. I am in total agreement with you. Yes. Now I will take it to the second framework, that is the bureaucratic framework and judicial framework. So the bureaucratic and judicial framework was intended to administer this country for the British Empire. They want to run it most economically with the best advantage to the Britain. So, though they pretended, हालांकि उन्होंने ये बहानाबाजी और ये दिखाने का सगुफा करने की कोशिश की कि बड़े न्यायप्रिय हैं, न्याय व्यवस्था है, कोर्ट कचहरी है, लेकिन उसमें जो निर्णय लिए गए हैं और जो मशीनरी पैदा की गई है, वो उसको इतना लीवे दिया गया है कि न्याय से कोई लेना देना नहीं है। जो उनकी दृष्टि में उनके लिए नुकसानदायक है, उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए। एंड दिस इज एविडेंट फ्रॉम एन नंबर ऑफ द केसेस, जिसमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स, जिनकी बड़ी गलती ना होने के बावजूद भी उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया, और वो भी ये न्याय का नाटक करते हुए, न्याय का ढकोसला करते हुए, और इतने डरे हुए थे। अब सरदार भगत सिंह की बात ही कर लें कि सरदार भगत सिंह ने एक स्मोक बम फोड़ा था। स्मोक बम, धुआं करने वाला बम। धुआं करने वाले बम में इतनी ताकत नहीं होती है कि किसी को मार दे। और उन्होंने ये बात बड़े स्पष्ट तरीके से कही थी कि इंटेंशन ऑफ थ्रोइंग दिस स्मोक बम वाज सिंपली टू अट्रैक्ट द नेशन एट लार्ज। राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने वो धुआं का बम फेंका था, और इन अंग्रेजी व्यवस्था जिसमें ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी आती है, उसे जो है ना फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। और डर के कारण एक दिन पहले, जो फांसी के दिन नियत था, उसके एक दिन पहले उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। सभी नियमों और कानूनों को ताक पर रख के इतने डरे हुए थे ये लोग। उन्होंने उनकी डेड बॉडी को भी डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की, बट फॉर द सम पुलिसमैन दोज हू डिड नॉट रियली अलाउ इट टू हैपन। तो हमारे साथ जो एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया गया, वो भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए था, और न्याय का ढकोसला करते हुए, और उस व्यवस्था को इतना लीचड़ बनाया गया था कि वो न्याय के ढकोसले में ही आप टूट जाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब कोई शांति भंग का अंदेशा होता है तो 107, 116 करते हैं, जिसमें कभी बाउंड ओवर नहीं करते हैं। आपको 6 महीने तक बस नोटिस जारी करते रहेंगे, और आप जो है ना आइए जाइए कोर्ट में खड़े होइए। मतलब आपको अंदर से तोड़ने की व्यवस्था है। डिलीवरी ऑफ जस्टिस कहीं भी नहीं है। नाउ वी कम टू द सेम, हमने वही इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एज इट इज अडॉप्ट कर लिया है, जो भारतीय गुलामों को शासित करने के लिए, शोषित करने के लिए और अपमानित करने के लिए बनाया था।
Do you agree with this observation before we move ahead? अनुस्मिता जी, आपका हाथ अभी भी उठा हुआ है, प्लीज गो अहेड. Do you wish to say something, or it is just raised, or it is hand raised last time? मैं आप लोगों से फिर से अनुरोध करता हूं कि जो अपन ने अभी सेकंड फ्रेमवर्क की बात कही है, जो कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क या जुडिशियल फ्रेमवर्क कहेंगे, वो भी वही है जो अंग्रेजों ने बनाया था और अपनी एम्पायर को जो है चलाने के लिए, उनको शोषित करने के लिए, शासित करने के लिए और अपमानित करने के लिए बनाया था. इट इज अनफॉर्चुनेट कि अभी भी आपके ऊपर वो थुपा हुआ है. डू वी एग्री विद दैट? Any observation? Yes. Yeah, Purvi ji, please come ahead. Yes, agree. Yeah. So, I could feel that there's a lot of जो है कहना चाहिए सहमति है. Everybody is feeling at large, yes, हमारा वही सिस्टम चल रहा है और उस सिस्टम को हमने 4 सेक्शंस जो है उनका जो है प्रोटेक्शन भी दे दिया है. तो आपको शायद नहीं मालूम है, आर्टिकल के 4 सेक्शन दे आर डेडिकेटेड टू सेव दिस फ्रेमवर्क. आर्टिकल 109, 1010, 1011, 1012. और हमने एक बहुत ही घृणित प्रावधान सीआरपीसी में किया है, जिसे 197 सीआरपीसी कहते हैं. इस घृणित कानून के तहत हमने इस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को न्यायपालिका के ऊपर रख दिया है. हमने इसे न्यायपाल, आप उसको जरा डबल टच करेंगे तो आपका हैंड वापस हो जाएगा, या डाउन हैंड करके, या वट एवर द प्रोविजन यू आर सीइंग, इधर द डबल क्लिप और डाउन हैंड, या करेक्ट. सो हमने 197 का जो प्रावधान किया है उसमें हमने क्या कहा है कि उसके विरुद्ध अपराध सिद्ध होने पर भी, चालान और चार्जशीट बनाने के बावजूद भी कोर्ट संज्ञान तब तक नहीं लेगी जब तक कि सरकारें जो है उसकी अनुमति ना दें. ये है प्रावधान 197 सीआरपीसी का. तो ये बहुत आसान है, इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है कि इसने जो है पूरे फ्रेमवर्क को हमारे राजनेताओं का चरण सेवक बना दिया है. और आपको जान के ताज्जुब होगा कि हजारों केसेस ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में पड़े हुए हैं जिसमें संज्ञान जो है ना न्यायालय नहीं ले पा रहा है, कोर्ट संज्ञान नहीं ले पा रही हैं, बिकॉज हमारे राजनेता उसमें अनुमति ही नहीं दे रहे हैं. सो वेयर इज द रूल ऑफ लॉ? लॉ इज हिंडर्ड. हमने लॉ को पकड़ के कुंठित कर दिया है. जिन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में बैठे हुए लॉर्ड्स के द्वारा आपराधिकृत किया गया है, उस पहले तो ऐसे आपराधिकृत का संज्ञान ही नहीं लिया जाता है. संज्ञान हो गया है, जांच करके उसका दोष सिद्ध भी पाया गया है, चार्जशीट तैयार कर दी गई है, तब भी हमने ऐसी व्यवस्था रखी हुई है कि हमने इन लॉर्ड्स को कानून के ऊपर कर दिया है और हम जो है सैकड़ों और हजारों केसेस में अनुमति ही नहीं दे रहे हैं. देन हाउ वी कैन क्रिएट ए फ्रेमवर्क ऑफ इक्वलिटी, हाउ वी कैन रियली क्रिएट अ फ्रेमवर्क ऑफ एम्पावरमेंट. एंड एम्पावरमेंट कहाँ देने की जरूरत है? इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को एम्पावर करना है या पब्लिक एट लार्ज शुड बी जो ना एम्पावर्ड? एक लॉ जो है वो केंद्र सरकार को शेड्यूल 7 लिस्ट 1 के तहत बनाना चाहिए था, बट इट इज अनफॉर्चुनेट विच हैज नॉट बीन मेड, जिसके तहत लॉ ऑफ कंपनसेशन आना चाहिए था. तो यदि कोई लॉर्ड गलत डिसीजन लेता है, वट एवर बी द रीजन, और उस डिसीजन के कारण यदि किसी की हानि होती है,
तो उस लॉर्ड शुड बी मेड टू पे कंपनसेशन टू द पर्सन और विक्टिम. दिस काइंड ऑफ द लॉ इज एब्सोल्युटली मिसिंग. तो पब्लिक जो है ना वो रिसीविंग एंड पर है, उसे सब कुछ झेलना है. इस वही व्यवस्था है कि चाकू जो है तरबूज पे गिरे या तरबूज चाकू पे गिरे, हस्र एक ही होगा, तरबूज कटेगा. उससे चाकू की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, चाकू की लॉर्डशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, चाकू के स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ना है. यही जो है आपका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क आपको दिया गया है. तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के मानदंड से आप जो है आज भी गुलाम हैं. डू यू एग्री विद दिस ऑब्जर्वेशन बिफोर वी टेक यू टू द थर्ड लेवल ऑफ द फ्रेमवर्क? Yes, sir. Institutional framework doesn't give the law of compensation. That's very true, sir. It's true, sir. We should have that. Okay. So now let's move to the third level कि जिनको आप चुन रहे हैं, जिन्हें आप चुने हुए प्रतिनिधि कहते हैं, जो हमारे वोट से चुने जा रहे हैं, आर दे रिप्रेजेंटिंग अस? आप लोगों का क्या सोचना है कि जो लोग आपके वोट से चुने जा रहे हैं वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं या अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एनी रिस्पॉन्स? Yes, sir. Sir, actually, majority of them are representing their political party only. Okay. All their motives are very similar to their party. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. आपने एकदम सही कहा है कि ये हमारे वोट से तो चुने जा रहे हैं, जिन्होंने हमें जो है नियम कानून की दिशा में जो है ना गुलाम बना के रखा है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के विजय जो है ना हमको गुलाम बना के रखा है. तो अब हम जो है जिसको वोट दे के चुन रहे हैं वो हमें नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है और बेहद ही डरा हुआ प्राणी है. वो पार्लियामेंट के अंदर पार्टी व्हिप से बंधा हुआ है और पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन से बंधा है और पार्टी सिर्फ अपना स्वार्थ देखती है. अब आप ये थोड़ा सा इसमें अपन अंदर घुसेंगे बिकॉज दिस इज अफेक्टिंग योर लाइफ एंड वी मस्ट डेलिबरेट ऑन इट. हमें इन पहलुओं पे थोड़ा सा और बारीकी से बात करना चाहिए जिससे कि हम जो है इन चीज़ों को ज़रा बारीकी से समझने की कोशिश करें. तो जो हमारे राजनेता हैं, जो बाहर से बड़े हट्टे खट्टे और मालूम नहीं कितने इंच के सीने वाले दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से ये लोग निहायत ही कमज़ोर और डरे हुए प्राणी हैं. इनके प्लेट में इनकी किस्मत से जो टुकड़े आ गए हैं, ये हमेशा भयभीत रहते हैं कि इनके पॉलिटिकल आका उसे उठा ना लें. और ये राजनेता जिनके कारण राजनेता बने हैं, ये तो उनके भी सगे नहीं हैं, आपके क्या सगे होंगे? आप ये बताइए, क्या कोई राजनेता अपने कार्यकर्ताओं के बिना राजनेता बन सकता है क्या? No, sir. Yes. Not possible. इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो कोई कार्यकर्ता चाहिए जो उनके लिए धरना दे, जुलूस निकाले, उनकी आम सभाएं कराए, उनके पोलिंग बूथ पे जो है अपनी ड्यूटी दे. ऐसे लोग जिन्होंने इन्हें राजनेता बनाया है, ये इतने दुष्ट राजनेता हैं कि अपने ही कार्यकर्ताओं को ये नज़रअंदाज करते हैं, उनके श्रम को, उनकी मेहनत को, उनके डेडिकेशन को दरकिनार करके ये टिकट किसे देते हैं? ये टिकट देते हैं अपराधियों को, ये टिकट देते हैं अपराधियों को, ये टिकट देते हैं बाहुबलियों को, जो आम जनता पर अत्याचार कर रहे हैं. उन्होंने इतना दबदबा बना के रखा है कि वो हार जाएं, ये किसी की औकात नहीं है. तो अपराधी, दल बदलू लोग, बाहुबली लोग, जो इनको पैसा देने की स्थिति में हैं और साथ में भय कारित करके जीतने की स्थिति में हैं, ऐसे लोगों को ये टिकट दे रहे हैं ओवर हिज और देयर डेडिकेटेड वॉलंटियर्स. तो जो उनके बड़े कर्तव्यनिष्ठ जो है ना कार्यकर्ता हैं,
जिन्होंने अपना ज़िंदगी दांव पे लगा दिया है उनके लिए, जो उनकी हाँ में हाँ करते हैं, उनकी हाजिरी करते हैं, उनकी दरबार की शोभा बनते हैं, उनको नज़रअंदाज करके ये टिकट जो है गलत व्यक्तियों को दे रहे हैं, टिकट जो है जाति और धर्म के आधार पर दे रहे हैं, टिकट अपने आकाओं के बेटों बच्चों को दे रहे हैं, जिनकी अभी ठीक ढंग से देखा जाए तो दूध के दांत भी नहीं टूटे हुए हैं। ये इनका डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है। ये न्याय कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, ये अपने देश के साथ। तो यदि वो फ्रेमवर्क ही न्याय नहीं करेगा, देन हाउ यू विल क्रिएट ए सिस्टम जहाँ पर कि आपको इक्वलिटी मिलेगी, जहाँ पे आपको न्याय मिलेगा, जहाँ पे हर जाति, हर धर्म, हर जेंडर का व्यक्ति अच्छे ढंग से, एक ढंग से शांति के वातावरण में रह सके। वो तो नदारद है। उल्टा जो है जाति और धर्म को आपस में डिवाइड करके, उनमें टकराव पैदा करके अपना जो है ना उल्लू सीधा करना आज की राजनीति का हिस्सा हो गया है। नाउ आई विल पॉज फॉर ए मिनट हियर एंड वुड लाइक यू टू रिफ्लेक्ट ऑन इस एनालिसिस से। आप लोग सहमत हैं क्या? Very true, sir. Totally agree. Great. Yes, sir. This is making more any sense. addition in this analysis? आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्योंकि थोड़ा सा डायलॉग होगा तो ज्यादा आनंद आएगा। Even yesterday I was asking a question related to this only, sir. This is making more sense. It is speaking from the voice of the public wanting to know. For years together we are worried about this sense of lack of equality and this discrimination, particularly our topic under discussion about criminal issues. So we are happy that from the public point of view there is a very sensible, reasonable analysis, sir, in your discussion. It's satisfying, sir. Oh, thank you. It's going in the right direction. Yes. Any more observation on this? Because now then we will be coming the discourse which will be transforming the whole framework. All right, sir. And any one or two more observations? I'm happy that we are able to at least criticize ourselves and find fault with the system. For once, we are able to do that. That is a good sign, sir. Great. Instead of only accepting the history as it is. Yes. आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्ट्री वाला कहा है, तो मैं एक ऑब्जर्वेशन कर दूं। जिस हिस्ट्री को आप पढ़ रहे हैं, इट इज नॉट योर ट्रू हिस्ट्री, इट इज ए डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री। तो हमारे यंग जनरेशन और हमारे आगे की जनरेशन, उन्हें ये आइडिया ही नहीं है जो वो पढ़ रहे हैं, वो उनका सही इतिहास है ही नहीं। सही है या नहीं? हाँ जी। I mean, this fact has to be appreciated, and I am very happy कि आज डोमेन में बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, and they are doing a really very original work in digging out and bringing the facts and glorious parts of our history, which has been deliberately hidden. यदि हम इतने वेल्दी नहीं होते तो लोग बाग खोजते हमारे पास नहीं पहुंचते, और जो खोजते हमारे पास पहुंचे वो बड़े कोई साधु संत नहीं थे, वो पायरेटर थे, वो लुटेरे थे। उनको महिमा मंडल करके हमने एक्सप्लोरर बना दिया, फलाना कर दिया, मतलब उनको भी हमने महिमा मंडल कर दिया। जबकि वो दुष्ट लोग जो है भारत की समृद्धि, भारत के वैभव को सुन के देश को लूटने के लिए आए थे, उनको हमने महिमा मंडल किया, अपनी हिस्ट्री को इतना नीचे ले गए हम। अदरवाइज ये बताइए, और कहीं तो कोई नहीं गया, भारत में कोई क्यों आया? वो इसलिए आया बिकॉज भारत सोने की चिड़िया थी। आई डू रिमेम्बर इटली का एक डेलिब्रेशन है फर्स्ट सेंचुरी का, जिसमें इटली की सरकार कह रही है कि हमें जो है भारत से अपने व्यापार को थोड़ा सा नियंत्रित करना होगा, क्योंकि हमारा बहुत सारा सोना ड्रेन होकर इंडिया जा रहा है। क्योंकि भारत उस समय हर चीज स्वर्ण मुद्राओं में बेचता था, तो चाहे वो साड़ी हो या मसाले हो या और कुछ भी चीज हो, वो सोने के भाव में बिकती थी। तो द डॉक्यूमेंट इज ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ द ग्रीस, दिस सेज कि सब हमें अपना जो है कॉमर्स भारत से कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा इफ वी वांट टू रियली सेव अवर वेल्थ। हम इतने धनी और इतने वो थे, ये बात जो है
हमको इतने कम समय में इतनी दयनीय स्थिति में ले आया गया कि हमें जो है बेसिकली यदि कहा जाए तो अब समय आ गया था कि जब हम स्वतंत्र हुए थे उस समय ये पूरा फ्रेमवर्क बदला जाता, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे ऊपर अत्याचार किए गए थे, जो हमारे वैदिक ज्ञान को, हमारी संस्कृति को नुकसान किया गया था, उसको हम रिस्टोर करने की कोशिश करते। हमारी कुछ यूनिवर्सिटी जैसे नालंदा जैसी थी, उसी के पैरेलल टाइप की हम यूनिवर्सिटीज को इसी काम के लिए डेडिकेट करते, क्योंकि भारतीय वैदिक ज्ञान को एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज था। आई डोंट नो आप लोग कितना सुने हैं या नहीं सुने हैं, थोड़ा सा डाइग्रेशन हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो डाइग्रेशन इज वर्थ डूइंग। तो जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना आज के IAS IPS जैसा था कि लोग जो है ना कई वर्षों की कोचिंग लेके फिर जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ के पास होते थे। तो बहुत सारे देशेस में इंक्लूडिंग इंडिया कोचिंग क्लासेस होती थी जिससे कि लोगों को इन 6 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाए। और यहाँ इसमें एडमिशन पाने के लिए लोग बाग जो है ना चाइना से और बहुत सारी जगह से ऐसे दुर्गम मार्ग से होके आते थे कि उस पर यात्रा करना अपने आप में बहुत कठिन था। बहुत सारे लोग तो जो है ना यात्रा के दौरान मर भी जाते थे, लेकिन टेम्पटेशन ऑफ द नॉलेज वाज सो मच कि लोग बाग वहाँ से आते थे और बहुत सारे देश, पड़ोसी देशों में वो इसके लिए कोचिंग लेते थे और इसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ के उन्हें नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता था। ये बात मैं कुछ महिमा मंडित करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बड़ी फक्र की बात है कि हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट थे। तो यदि हमारे लोगों ने हमारा, जैसे नालंदा की यूनिवर्सिटी 6 महीने से भी ज़्यादा समय तक जलती रही, तो जो ये नॉलेज यहाँ जल गया होगा उसके रेमिनिसेंट विड बी अवेलेबल अक्रॉस द ग्लोब। जहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे वो किसी न किसी स्वरूप में जरूर वहाँ पर अवेलेबल होगा। यदि हम इंटेंडेड रिसर्च करते तो हम जो है बहुत जल्दी जो है उसको रिकूप कर सकते थे। जो भी हमको जो है उसके रेमिनिसेंट जहाँ भी मिलते उनको हम दोबारा इकट्ठे करते और उस पर रिसर्च करके हम इंडिया को चाहते तो विश्व गुरु बना सकते थे। वी कुड हैव मेड इट द बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन यहाँ तो हर चीज डिस्टॉर्ट कर दी गई है। अब आप ये बताइए, भारत के ऊपर इतने आतताई आए, उन्होंने आक्रमण किए, उन्होंने भारत को हीन भावना पैदा करने के लिए एक ट्रेडिशन सा बन गया था कि आपको जीतने के बाद हत्याएं करना, बलात्कार करना, महिलाओं को ले जाना, महिलाओं को बेचना, ये आम बात थी। वो केवल उन्होंने भारतीय महिलाओं को 2-2 दिनारा में नहीं बेचा, बल्कि उसके स्तूप लगाए जो आज भी अवेलेबल हैं। जिन लोगों ने ऐसा किया हम उनको महिमा मंडित किए, उनको ग्लोरीफाई किए, उनके नाम पर जो है ना हमने गलियों के नाम रखे। कैसा हमारा चरित्र कैसा है? जो लोग हमको जो है ना कुंठित किए, जिन्होंने हमको अपमानित किया, हमारी जो भी स्थिति रही हो, हम अपने आप को उस समय उतने अच्छे ढंग से डिफेंड नहीं कर पाए। तो हम चाहे जो है, मैं कई बार जो है ना ये मुस्लिम का वो बहुत अच्छा मानता हूँ, हाय हुसैन मैं ना हुआ। मतलब यदि हम कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम अफसोस तो जाहिर करें कि यदि हम होते तो शायद कुछ करने की कोशिश करते। हम कितने जो है ना लीचड़ लोग हैं कि जिन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया हम उनको महिमा मंडित करते हैं और उनके सामने अपने आप को जो है ना हीन मानते हैं। हमको अकबर महान कहने में कोई शर्म नहीं आती है। हम उनके नाम पर जो है ना ढेर सारे वो करते हैं, और दैट टू बेस्ड ऑन द डिस्टॉर्टेड फैक्ट। जो फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं दे आर नॉट द फुल फैक्ट, दे आर द डिस्टॉर्टेड फैक्ट। और डिस्टॉर्टेड फैक्ट के माध्यम से आपको जो है ना महिमा मंडित किया गया। तो लेट्स कम टू द ओरिजिनल पार्ट कि जो राजनेता हैं वो हमारे वोट से जीतते हैं लेकिन हमको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो जीतते भी गलत तरीके से हैं। उनकी सोच का ये हिस्सा नहीं है कि भारत को एक अच्छा देश बनाए। वो
गरीब जो है ना, गरीबी हटाने की तो बात करते हैं, लेकिन उनके दिल में जो है भावना होती है कि गरीब बनाओ और वोट पाओ। वो आपसे सिंपैथी तो हासिल करते हैं, लेकिन आपको वो इकोसिस्टम और वो फ्रेमवर्क नहीं देते हैं जिससे कि कोई नेगेटिव चीज होना संभव ही ना हो। इस ऑब्जर्वेशन से कितने लोग सहमत हैं? देन आई विल कम टू द 5 सर्टेनिटीज वेयर वाई वी कैन मेक ए ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। Yes, please. Agreed, sir. Okay. Any more analysis on this? सहमत है सर। Okay. So there's a audience is in agreement at large. तो अब हम उसकी बात करें। इसमें प्रिजम्पशन ये है कि नियम कानून ये बड़ा खतरनाक प्रिजम्पशन है, राइट। इसी प्रिजम्पशन के तहत जो है मैंने 2017 में एक कॉन्सेप्ट नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था। उस समय मैं डीजी पुलिस रिफॉर्म था, और डीजी पुलिस रिफॉर्म की हैसियत से 2017 में आई सेंट वन फुल कॉन्सेप्ट नोट कि इस देश को अपराध मुक्त कैसे बनाया जाए, हाउ टू मेक दिस कंट्री क्राइम फ्री। देयर इज ए बेसिकली आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक नेशनल पुलिस मिशन का कॉन्सेप्ट 2009 में माननीय मनमोहन सिंह जी ने शुरू किया था, और ये कॉन्सेप्ट जो है 2009 से 2014 तक जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का हिस्सा था। 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी के आने के बाद इसे होम में शिफ्ट कर दिया गया, और होम से फिर ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसको पहुंचा दिया गया। आज ये इट इज़ हाउस्ड इन ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, BPRND में अभी ये हाउस्ड है, और ये इसके द्वारा जो है संपादित होता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नोट जो है वो BPRND के पास पहुंचा, और एक इलाबोरेट प्रक्रिया में 2 साल का समय लगते हुए 2019 में 2019 में इट has been accepted as a national police mission. It has been accepted as a national police mission in 2019, and since then I am the project head. Even today I am also the project head. And first I will elaborate on this कि how that crime free Bharat is doable. Then I will talk about the ecosystem, and then I will talk कि आपका इसमें क्या रोल हो सकता है, क्योंकि दूसरों के करने से वो चीज़ नहीं मिलेगी जो होना है। यदि हम अपने थोड़े से मार्जिनल कंट्रीब्यूशन करते हैं, यदि हम अपना योगदान देते हैं, यदि हम चंद्रगुप्त बनते हैं, तो इस देश को बदलने से कोई नहीं रोक सकेगा। मैं ये कह रहा हूँ 2024 से ये देश बदलेगा। चलिए, तो लेट्स कम बैक टू द हाइपोथेसिस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द क्राइम फ्री भारत। Somebody may remind me if time frame के बारे में कुछ कहना हो, और I can have the leeway to take my own time. Sir, you have half an hour. Okay, no issue. I will try to complete it within that. Okay. So there are the 5 certainties. First certainty, and it is essentially techno-driven initiative. So even Manet has been the part of my drive, because I had that MOU with 53 universities and institutions, and Manet was also one of them. And the children of Manet, they have also participated in various projects. So the first part उसका था कि बिना थाने जाए हमारी FIR दर्ज हो, और ये FIR उनकी भी दर्ज हो, विशेष तौर पर उनकी दर्ज हो जो गांव के गवाणी हैं, जिनको ना तो टेक्नोलॉजी समझ में आती है, ना ही उनके पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, ना ही उनके पास कोई लैपटॉप और डेस्कटॉप है, एंड विदाउट देम टू टेक द रिकोर्स टू द एनी जो है ना E-सेंटर और काइंड ऑफ द थिंग्स। तो दे वर द 6 गेटवेज टू मेक इट हैपन,
लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट गेटवे था कि जो वॉलंटियर है वो अपने ऐप के साथ जाएगा और एफआईआर दर्ज करेगा, और जो एफआईआर दर्ज होगी इट विल बी टेक्नोलॉजी ड्रिवन। उसका हर कंपोनेंट ऑडियो वीडियो रिकॉर्डेड होगा, उसके पीछे बैठी हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आइडेंटिफाई करेगी कि कौन सा क्राइम हुआ है, वो सेक्शन अप्लाई करेगी। भारत एक विभिन्नता का देश है जहां हर 10 किलोमीटर में हमारी बोली में थोड़ा सा बदलाव आता है, लिहाजा जो है हमारी बोलचाल डायलेक्ट जो है बदलने के कारण सिस्टम जो है वो फरियादी की बात समझ पाता है कि नहीं समझ पाता है। इसके लिए जो है उस भाषा को समझने वाले जो है एक लैंग्वेज इंटरप्रेटर का भी उसमें प्रावधान रखा गया, और ये लैंग्वेज इंटरप्रेटर को जानबूझ के उसमें डाला गया सो दैट ही शुड बिकम वन ऑफ द एडिशनल विटनेस टू द प्रोसेस ऑफ एफआईआर। तो जो व्यक्ति अपना मोबाइल ऐप ले जाके एफआईआर करा रहा है, ही हैज आल्सो बिकम द विटनेस टू द प्रोसेस ऑफ एफआईआर, ही इज विटनेस टू द फेस और द विक्टिम, और ही इज आल्सो जो है ना फैमिलियर, और ही हैज सीन ऑफ क्राइम आल्सो। तो वो जो फैसिलिटेटर है आपकी एफआईआर का, ही इज आल्सो बिकमिंग 3 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द विटनेस आल्सो, प्रोसेस ऑफ एफआईआर, नंबर 2 जो है ना सिचुएशन इंक्लूडिंग फिजिकल स्टेटस ऑफ द विक्टिम, एंड तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट उसका पार्ट है दैट इज सीन ऑफ क्राइम। तो यदि उस समय विक्टिम जहां से रिपोर्ट कर रहा है ही इज स्टिल एट द सीन ऑफ क्राइम, देन जो पर्सन उसकी एफआईआर रिकॉर्ड करने में फैसिलिटेट कर रहा है वो ही कैन हैव द लिटिल आइडिया अबाउट द सीन ऑफ क्राइम आल्सो, बल्कि हम जो है उसको डेलिबरेटली भी भेज सकते हैं। एंड नाउ बाय फिटिंग 2 or 3 एक्स्ट्रा फीचर्स वी कैन रियली कैप्चर 3D dimension of the whole crime where we can recreate that how crime could have been committed. इतनी पावरफुल एफआईआर जो कि इन्वेस्टिगेशन का भी बेस बनेगी, ऐसी फर्स्ट सर्टेनिटी। एक चीज का हमें हमेशा रियलाइजेशन रहा है कि हमारे डीएनए में कुछ गड़बड़ हो गया है, तो हम लोग कई बार बेशर्मी से छोटे मोटे लाभ के लिए फंसाने के लिए झूठी एफआईआर करते हैं। तो ये हमारे बैक ऑफ माइंड में हमेशा था कि हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि एफआईआर एज ए टूल शुड नॉट बी मिसयूज्ड बाय एनीबॉडी। तो द फर्स्ट certainty of recording of FIR without wasting police station, and that should be with n number of the जो है witnesses, audio video record, language interpreter, legal interpreter, and at the same time if somebody is making any false and fabricated FIR, with the same certainty he should be prosecuted. So FIR or lodging a false FIR should not be a tool available in the hand of the nefarious people, vicious people. The innocent people should not be harassed by these bad people. So the first certainty is the certainty of registration of FIR without visiting to the police station. Now the second part, it is having certainty of investigation within 15 days by the most ordinary police officer with support of the crime-free Bharat Techno Engine. And there will be lot of crowdsourcing and lot of benefit will be flowing to the public at large. That whole space will be full of the sensor and capturing devices, CCTV, etc., where each and every जो है ना things would be covered and would be captured. तो आज हमारी जो कैप्चरिंग है, आने वाले समय में वो कैप्चरिंग मिलियंस ऑफ टाइम जो है ना ज़्यादा होगी। प्रॉब्ली हमारे पास जो है हर एस्पेक्ट की इनफेलिबल एविडेंस हम जो है हमारे मोस्ट ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर के माध्यम से भी कैप्चर करते हुए अधिकतम 15 दिन के अंदर चालान या जिसको चार्जशीट कहते हैं वो कोर्ट में पेश हो जाएगी। दिस इज द सेकंड सर्टेनिटी। देन the third certainty of the concept, the prosecution or trial without visiting to the court.
तो यदि हमारा चला तो आने वाले समय में कोई कोर्ट नहीं होंगी, जज महोदय होंगे, वो अपने जगह से ऑपरेट करेंगे, उनके पीए सिस्टम सपोर्ट सिस्टम होगा वो भी अपनी जगह से ऑपरेट करेगा, प्रोसिक्यूशन लॉयर भी अपनी जगह पे ही होगा, डिफेंस लॉयर अपनी जगह पे होगा, विक्टिम अपनी जगह पे होगा, विटनेस अपनी जगह पे होगा, ऑफेंडर अपनी जगह पे होगा, और जो है डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से लेके अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा। हमारी जो है ना ट्रेवर्सिटी ये है, ट्रेवर्सिटी ऑफ द जस्टिस, कि हमारा ट्रायल जो है ना वर्षों वर्ष चलता है एंड इट बिकम्स वेरी ह्यूमिलिएटिंग टू द पीपल, स्पेशली जब जो है इट इज समथिंग लाइक आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ द फीमेल और रेप और इस तरीके के ऑफेंसेस होते हैं, दे आर वेरी ट्रॉमेटाइजिंग एंड द विक्टिम हैज टू अंडरगो दैट काइंड ऑफ द ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ द आवर ट्रायल सिस्टम इज वेरी इनसेंसिटिव एंड इनह्यूमन। हमें वो इकोसिस्टम बदलना चाहिए। इन majority of the cases we will be in position to deliver justice within 3 days. In rarest of the rare case it will be within 30 days and nobody will be nobody would be allowed to take more than 30 days. So certainty of the justice within 30 days, it is the third certainty of the crime free Bharat. Then we come to the fourth certainty, certainty of the prevention. I would like to tell this august audience that in September 2020, I sent one draft law, draft rule, draft act to the government of India, which I very fondly say Digital Chitragupta. However, it is having a very big name because I thought I should give a name so nobody should be in position to question its constitutional validity. So I will take that big name, National Authority for Scientific and Technical Assistance in Investigation and Detection of Crime, under entry 65C, Schedule 7 of the Constitution. And this law, it's guarantee you right to privacy. But the right to privacy, as other fundamental rights, is always limited. The moment you will commit crime, the same Digital Chitragupt will report it without going to the Thana. The FIR would be registered. Within 15 days, charge sheet would be submitted, and within 3 to 30 days, the person will be prosecuted and rotting in the jail. This Digital Chitragupt would be in position to capture almost 360 about every criminal. Hence, is artificial intelligence very correctly would be in position to predict that now this individual X is going to commit crime. These are the 5 associates moving with him. He is moving in this vehicle. He will be moving through this path, and that's the how jo hai na it will be. And system would be having the smart intervention process. And through that smart intervention process, in majority of the cases, we would be in position to arrest or intervene before the person could commit crime. You will say कि साहब इतने आप पुलिस वाले कहाँ से मिलेंगे? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? How it would be possible on ground? तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों की जानकारी के हिसाब से इस देश में कितने पुलिस ऑफिसर हैं? Would anybody like to guess? यदि मैं कहूं कि 137 करोड़ पीपल, तो would you be surprised? Yes, भारत में भारत की पूरी जनता पुलिस ऑफिसर है, और ये कोई इमोशनल स्टेटमेंट नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली लीगल स्टेटमेंट। सेक्शन 39 CRPC के तहत you are having the fundamental duty to report about the crime, failing which you will be prosecuted and burden of proving innocence lies on you.
This kind of the powerful and good law is there. Then there is a section called the 43 of the CRPC that gives the right to each and every citizen of India to make a arrest even when police is standing there. It means you can arrest a person in two situations. Situation number one, he is committing any cognizable offense. यदि वो एक कोई संज्ञेय अपराध कर रहा है तो वैसी स्थिति में आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, और वो भी पुलिस की खड़े होने पर, पुलिस की उपस्थिति में भी। तो गिरफ्तार करने वाले आप होंगे और पुलिस जो है ना उसे बाद में रीअरेस्ट करेगी। ऐसा प्रावधान है सेक्शन 43 CRPC में। आप सभी लोग I will request you to Google out and really reread this provision. It will change your knowledge base, and it will help you, because each one of you are mandated by the law to be police officer. I think section 44 hai, which says each citizen of India is mandated to help police, or not only police, to even representative of the police. तो किस चीज के लिए? For execution of warrant and for arrest etc. Right? So, and fourth dimension है, which is very very important, which comes from section 100 of IPC. ये CRPC, अभी तक अपन CRPC की बात कर रहे थे, अब पहली बार हमने IPC की बात की है। 100 IPC जो है आपको देती है राइट टू प्राइवेट डिफेंस, राइट टू सेल्फ डिफेंस टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग डेथ। मतलब कानून ने आपको इतनी ताकत दी है, और उसमें महिलाओं से रिलेटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, जिसमें आप सामने वाले की, बल्कि 3 प्रोविजन है। एक किडनैपिंग का है, एक रेप का है, तीसरा एसिड थ्रोइंग का है। यदि आपको संभावना प्रतीत होती है कि कोई इन 3 एक्ट को कर रहा है, यू कैन शूट हिम एंड किल हिम एंड यू हैव नॉट कमिटेड ए क्राइम। ये सेक्शन 100 IPC आपको पावर देता है, राइट टू सेल्फ डिफेंस। तो आपको सूचना देने के लिए वो है, मदद करने के लिए आप कानून बाध्य हैं, गिरफ्तारी करने का आपको अधिकार है, और आप जो है किसी दूसरे को बचाने के लिए, उसके साथ बलात्कार ना हो, उसके ऊपर एसिड ना फेंका जाए, उसको किडनैपिंग ना हो, इसके लिए सामने वाले को आप शूट कर सकते हैं। इतने अधिकारों के साथ आप अपने आप को पुलिस अधिकारी मानने के लिए तैयार है कि नहीं है? डू यू नाउ कंसिडर योर सेल्फ एज ए पुलिस ऑफिसर और नॉट? Yes, sir. Very happy to know about these things, sir. Yeah, these are the legal provision. Priya ji, I would like you to please जो है Google it out and read in details, because they are very very powerful. So one thing is, yes sir, wonderful information. I'm so thankful to you sir. Wonderful information, even wonderful lecture. बहुत ही अच्छा लेक्चर था आज तक के सफर में सर। जितना भी मैंने लेक्चर सुना है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल लेक्चर एवर आई हर्ड इन माय लाइफ फ्रॉम ए पुलिस ऑफिसर, आई मीन फ्रॉम ए पर्सन, आई मीन आप एक खुद ही पोजीशन में है सर, पुलिस ऑफिसर की पोजीशन पे आप रह चुके हैं आप। सो सर बहुत वंडरफुल, आई एम thankful to you sir, thank you so much. I'm Dr. for your this appreciating comment sir. and, yes sir, I am Dr. Hafida Begum. I am an assistant professor in Lovely Professional University Punjab. Great. मैं आप लोगों को thank सभी you, को sir. पार्टनर Yes. बनाने वाला हूँ टू क्रिएट दैट Sure, इकोसिस्टम। मैथिली शरण गुप्त जो Yes, है sir, ना of course. हवाई कार्रवाई नहीं करते हैं। सो लेट मी फर्स्ट कंक्लूड इट एंड then we will come to that. We will try that everything should be encompassed within the time frame available with me. So this fourth certainty of the prevention, जिसमें हम टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं और कॉमन सेंस का बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ विकास दुबे हु किल्ड 8 पुलिस ऑफिसर? Yes, sir. Yes. So he was in hand and glove with the politician, he was in hand and glove with the police, and it is the police few officers, they informed him, and he was ready to shoot them, and that's how that eight officer, including one gazetted police officer, he was killed in the incidents. Then Maithili Sharan Gupta decided
दैट हम ऐसा सिस्टम क्रिएट करेंगे कि लोग कहते हैं कि हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है। तो यदि जो है क्राइम फ्री भारत मिशन कुत्ते को उसकी गली में पकड़ना चाहता है तो वो शेर की तैयारी से जाए, लेकिन उसे विकास दुबे जैसे के सूट होने की स्थिति नहीं होना चाहिए। और यदि जो है नहीं तो हम नॉर्मली कुत्ते को कुत्ते की हैसियत से पकड़ेंगे। लिहाजा जो है क्राइम फ्री भारत का जो टेक्नो इंजन है वो स्मार्ट इंटरवेंशन उस जगह करेगा जहां पर उसके अटेम्प्ट का जो है ना पूरी कैप्चरिंग हो चुकी होगी और उसकी हैसियत कुत्ते की होगी। उस समय उसे अपराध करने के पहले रोक लिया जाएगा। ऐसा पावरफुल सिस्टम होगा जो कि बहुत आसानी से जमीन पर उतारा जा सकता है, बट फॉर द legal and right kind of the institutional framework has been created. That is the only need of the hour. We will come on that also. So मेरा कहना ये है कि once we could put into the place within 5 years we will be having so much of the database that we would be in position to prevent almost 99%, 99.9% of the offenses of the people those who are already on the record. There may be some crime out of just frustration or without any scheme or planning. Those kind of the crime just cannot be checked, but there will be very prompt response within 45 days. The person will be prosecuted. So slowly people will be having more faith in the system. हमारे लोग जो है आज जो उन्हें सिस्टम में धेले भर का जो है ना फेथ नहीं रह गया है। Every one of us would be bubbling with the faith. तो जो अभी हम कई बार कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, चाहे वो आउट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन वट एवर इट में भी, चाहे हम मॉब लिंचिंग में चले जाते हैं या रोड रेज में चले जाते हैं, दैट काइंड ऑफ द मॉब लिंचिंग विल नॉट टेक प्लेस, दैट काइंड ऑफ द रोड रेज वुड नॉट बी देयर, इट विल जस्ट डिसअपियर। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही चीजें इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द इनर फ्रस्ट्रेशन। जब हम कूल एंड कंपोज रहेंगे क्योंकि इकोसिस्टम हमको वो सब प्रोटेक्शन दे रहा है, तो जो जिन फ्रस्ट्रेशन से आज हम सफर कर रहे हैं वो फ्रस्ट्रेशन डिसअपियर हो जाएंगे। तो वंस क्लोजिंग द ऑप्शन टू कमिट क्राइम, तो हम ये कहना चाहते हैं 2024 से 5 साल बाद 2029 तक भारत में अपराध करना एक ऑप्शन नहीं बचेगा। बल्कि मैं तो जो है ना एक टेंजेंट ऑब्जर्वेशन और देना चाहता हूं कि भारत में गरीब बना रहना भी एक ऑप्शन नहीं बचेगा। भारत का हर व्यक्ति समृद्ध होगा। ऐसा एक इकोसिस्टम जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन क्रिएट करेगा। विद दिस लिटिल बिग टॉल काइंड ऑफ कमेंट वी विल कम टू द फिफ्थ सर्टेनिटी, दैट इज द सर्टेनिटी ऑफ द रिहेबिलिटेशन। इफ यू आर हैविंग ए डिजिटल चित्रगुप्त विच कैन नो ईच एंड एवरीथिंग इन दैट टू इन 360 डिग्री, देन भाई साहब जो है अपराधी को अपराधी क्यों बने रहने देना चाहिए। सो सिस्टम जो है वो अपराधी के पास जाएगा, कहेगा दोस्त अब अपराध करने का ऑप्शन आपके हाथ से हट चुका है, तो फिर तुम अपराधी क्यों रहना चाहते हो। लेट्स सिट टुगेदर एंड प्लान कि हम कैसे आपको ट्रेनिंग स्किल सेट दें सो दैट यू कैन बिकम मीनिंगफुल पर्सन फॉर द नेशन, यू कुड बिकम द मीनिंगफुल रिसोर्स फॉर द कंट्री। So the fifth certainty is the certainty of rehabilitation of the criminal. All criminals will be rehabilitated. So when there will be no criminal around, then there will be larger sense of the crime-free Bharat. There will be larger sense of the order. There will be larger sense of the faith in the system, and we can focus on the other developmental dimension, including the inner developmental dimension. That kind of the things would be doable. I will pause here and would request the audience, would you like to reflect on this crime free Bharat mission with 5 certainty? आपकी ओर से कोई भी रिफ्लेक्शन, कोई भी ऑब्जर्वेशन, कोई भी प्रिकॉशनरी नोट, कोई भी सजेशन, whatever format you wish to share, please do.
since there is no response, I will move on to the next dimension कि इसको जमीन पे कैसे उतारना होगा। तो इसके लिए एक क्राइम फ्री भारत मिशन बनाया गया है, जैसे नेशनल मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत है, दैट इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट अंडर मी। ऐसे ही हमने एक वॉलंटरी मिशन बनाया है जिसका नाम है क्राइम फ्री भारत मिशन। I would like all of you to please join it. It is having its own app. The name of app is Crime Free Bharat Mission app. It is powered by the Kutum app. I will tell my mobile number 9425606040. I repeat my mobile number, please note down 9425606040. Please जो है send me a message giving your name and detail. I will send the link of this app whereby you can formally join and you can become the part of it. This will change the very nation. It will empower each and every woman and each and every citizen. The discrimination will just disappear. The present way of thinking of empowerment, discrimination, this, that will disappear. We will be having a different ecosystem in the country. This mission is having 21 broad objectives which take care of the women empowerment, women equality and everything, and gender sensitiveness and everything would be there. So I will request you, I will appreciate if you can send SMS. I will say don't send in WhatsApp because WhatsApp will disappear within 24 hours. I have done that kind of the setting in my system. So I will request please prefer SMS, send your name and mobile number, and I will send that link. Please join Crime Free Bharat Mission, and that will be transforming this nation. It is having basically we started our channel, YouTube channel, Crime Free Bharat Mission. No, not Crime Free Bharat Mission. Crime Free Bharat is the only name, this much only. Crime Free Bharat YouTube channel. I would like you to please search it on YouTube and subscribe it. I will be happy if you could see one video a day. That will help you to maintain your energy level. यदि आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसका एक वीडियो हर दिन देखेंगे तो आपकी जो ऊर्जा है वो उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी और हम जो है बड़ी आसानी से 2024 में उस मिशन को प्राप्त कर पाएंगे और ये बहुत दूर नहीं है. इट इज हार्डली 15 months फ्रॉम नाउ. सो I think we can really and we must do it. I will be very happy if all of you N Block join me. This Crime Free Bharat Mission is having one pledge, जिसको हिंदी में हम शपथ कहते हैं. तो हर किसी को जो है ना ये शपथ लेना है. इस शपथ के 3 हिस्से हैं. पहला हिस्सा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं अपने देश के लिए चंद्रगुप्त बनूंगा. मैं थोड़ी देर से समझाऊंगा चंद्रगुप्त होता क्या है, राइट. तो मैं अपने देश के लिए चंद्रगुप्त बनूंगा. ये शपथ का पहला हिस्सा है. शपथ का दूसरा हिस्सा है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्रतिदिन एक वीडियो जरूर देखूंगा जिससे कि हमारी एनर्जी उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी. ये शपथ का दूसरा हिस्सा है. फिर शपथ का तीसरा हिस्सा है कि मैं क्राइम फ्री भारत मिशन से लोगों को जोड़ूंगा और दिनवार जोड़ूंगा. तो उसको पहले जो हमने आपसे बातचीत की इसको कहते हैं ऊर्जाकृत करना, इसको कहते हैं संकल्पित करना. तो ऊर्जाकृत करके और संकल्पित करके हम लोगों को जोड़ेंगे और
दैट्स हाउ वी विल बी ट्रांसफॉर्मिंग दिस नेशन। तो सोमवार को हमें अपने परिवार के लोगों को जोड़ना है, तो अपने माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, एक्सटेंडेड फैमिली, ये सोमवार का काम है, मंडे का काम है। मंगलवार ट्यूसडे को हमें अपने मित्रों और पड़ोसियों को जोड़ना है, तो फ्रेंड्स एंड नेबर्स दे विल बी एडेड ऑन द ट्यूसडे। देन बुधवार को हमें अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है। गुरुवार को हमें अपने जो विभिन्न सर्कल्स हैं, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट का एक सर्कल होता है, एलुमनाई का सर्कल होता है, आजकल हम सोशल ग्रुप वगैरह को भी ज्वाइन करते हैं। तो जो भी जिस तरीके के सर्कल से जुड़ा हुआ है, तो गुरुवार इज मेंट फॉर के सर्कल के लोगों को जोड़ना है। देन शुक्रवार इज मेंट फॉर स्टूडेंट्स एंड यूथ, तो युवाओं को और विद्यार्थियों को जोड़ना है, और युवा और विद्यार्थी जहाँ पे भी हों वहाँ जाकर उनको ऊर्जाकृत करना है और उनको जोड़ना है। तो ये दैट इज फिक्स्ड फॉर द फ्राइडे। देन सैटरडे इज मेंट फॉर द सीनियर सिटीजन। आज जो है हमने ऐसा पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम खराब कर दिया है कि पहले जो है एक व्यक्ति कमाता था और पूरे कुनबे को पाल लेता था। आज मियाँ बीवी दोनों कमा रहे हैं, फिर भी 2 बच्चों को पालने में उनको जो ना पसीना आ रहा है। तो इस बिकॉज ऑफ दिस डिस्टॉर्शन नाउ जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो कि दे हैव कंट्रीब्यूटेड देयर होल लाइफ, दे आर एट द रिसीविंग एंड, दे आर काउंटिंग देयर डेज। तो यदि हम उनको जोड़कर एक मिशन दे देंगे तो उनकी एनर्जी और उनके अनुभव से हमको फायदा मिलेगा। सो Saturday is meant for the senior citizen and the Sunday is meant for all social कहना चाहिए कि जो सामाजिक संगठन है, जो सामाजिक कार्य करने वाले हैं, उन सबको जोड़ना है। ऐसा 7 दिन का जो है प्रण है उसमें। तो हैव यू अंडरस्टूड दिस शपथ? I would like to pause and would like to listen you. And then I will be explaining what really is चंद्रगुप्त, क्योंकि चंद्रगुप्त बहुत जरूरी है। एक ऐसा सिस्टम है कि बिना 5 पैसे खर्च किए हुए हम लोग इस देश के इकोसिस्टम को बदल सकते हैं, इतना पावरफुल है ये। Here I would like to really listen your reflection. Sorry to interrupt you, sir. Sir, we have another speaker waiting for another session. So, all right. Sir, if you all right. If So you can I think we can meaningfully जो है ना conclude it. Rest of the things I will just explain one thing कि चंद्रगुप्त कौन है. So the चंद्रगुप्त is a person जो सांसद क्षेत्र में सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा, वो जो है चंद्रगुप्त कहलाएगा। और इसके लिए जो है चंद्रगुप्त के पास कोई लोग पहुंचेगा और उसको सांसद का टिकट भी देगा, और सब लोग जो है जुड़े हुए लोग उसको जिताएंगे। एंड वेयर वाई वी वुड बी इन पोजिशन टू चेंज द होल इकोसिस्टम, वी वुड बी इन पोजिशन टू चेंज रूल्स, लॉ एंड सिस्टम। एंड जो हमारे डीएनए में डिस्टॉर्शन आ गया है विद द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, यदि हम 21 दिन तक भी राइट पाथ पे चलते हैं तो यू मस्ट बी नोइंग दैट धीरे धीरे वो हमारे स्वभाव, हमारी आदत और हमारे संस्कार का हिस्सा बनेगा। तो टेक्नोलॉजी विल बी इनिशियली हेल्पिंग अस, बट इन लॉन्गर रन इट विल बी पार्ट ऑफ अवर संस्कार। तो चूंकि जो है हमारे सक्सेसर जो है आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आई होप जो है यू वुड लाइक टू ज्वाइन क्राइम फ्री भारत मिशन। So don't forget to give me one SMS giving your identity, your name, etc. I will save your number. I will send you a link and let's become Chandragupta. जो शपथ है उसको लेकर आओ हम सब मिलके अपनी स्ट्रेंथ पर इस देश को बदलें, क्योंकि ये राजनेता तो अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। हम और आपको एक जीवन मिला है, क्या हम इसे ऐसे ही व्यर्थ जाने देंगे या हम वो परिवर्तन लाना चाहेंगे जिसकी हम कल्पना कर पा रहे हैं,
जिसको हम इन्विसाज कर पा रहे हैं, जिसके हम पाथवेज क्रिएट कर पा रहे हैं, जिसके लिए हम टेक्नोलॉजी क्रिएट कर पा रहे हैं, आओ हम उसे जो है ना ग्राउंड पर उतारें। इसी बात के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि 1 मिनट में आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं 1 मिनट का समय देता हूँ। इसके बाद जो है आई विल बी एग्जिटिंग दिस सिस्टम। थैंक यू सर, इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। Thank you very much, and I hope कि you people will be the part of us by joining our mission। और ये मेरे ख्याल से हर भारतीय का कर्तव्य भी है कि वो किसी दूसरे पे आरोप देने की बजाय लेट्स जो है ना क्रिएट ए सिस्टम वेयर बाय वी कैन चेंज अवर इकोसिस्टम। इसी के साथ ही मैं आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से मेरी बात सुनी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Thank you, sir. Thank you for being here with us and delivering your lecture on women in crime-free India. So surely some of us will definitely join your crime-free Bharat mission. So thank you, sir, once again. Thank you.